हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। रेडी होंगे आप सभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। कल तक की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वी हैव डिस्कस्ड हाउ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, expenditure on migration and on information health and formation of human capital, right? Today we have to discuss the relation between human capital and economic growth. How human capital formation results in economic growth of a nation, or why human capital formation is must for economic growth of a nation. Have a look everyone. Firstly, you must know the meaning of economic growth. It means increase in real national income of a country. Whenever there is a rise in real national income of a country, we can say that country is moving towards the path of economic growth. Now have a look. Basically, you have to focus on two important segments of human capital. Number one, health, and number two, education. इन दो पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बट दे आर द सेकेंडरी फैक्टर्स. So have a look what is written over here. The contribution of an educated person to the economic growth is more than that of an illiterate person. Simple सी बात है. एक educated individual will be able to contribute more towards the economic growth, as he will be able to produce more goods and services by using his skills, right? So his contribution is always more. So more educated individual means more economic growth. Secondly, a healthy person, he is also capable of doing more labor, uninterrupted labor supply for a longer period of time, which will again result in more output and which will increase the economic growth of a nation. So have a look what is written over here. Both education and health, along with many other factors like on-the-job training, job market information, and migration, increases the income generating capacity of an individual. यहाँ इनकम जनरेटिंग की जगह अगर आप इनकम अर्निंग लिख देते हैं तो गलत हो जाता है. इनकम इकोनॉमी में जनरेट की जा रही है. वी आर गोइंग विद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में इनकम जनरेशन पे प्रायोरिटी आपको फोकस करना है, जैसा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया था, राइट? नेशनल इनकम पढ़ते टाइम. नाउ हैव अ लुक. ये कह रहे हैं HCF प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स. सिंपल सी बात है. If more and more human capital formation will wait for a second. Keep yourself muted. Just give me a second. Yes. So we were on the point. HCF promotes inventions, innovations, and technological improvements. I was explaining you कि अगर हमारी इकोनॉमी में more and more human capital formation होगा, it means हमारी human resources की productivity और quality बढ़िया है. And better human resources are capable of making more and more innovations and inventions in our economy. जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको लाने वाले तो ह्यूमन बींग्स ही हैं. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. The human capital formation not only increases the productivity of human resource, it also stimulates innovation and creates ability to absorb new technologies. Innovation लाने वाला भी human being और उस innovation को implement करने वाला भी human being. Innovative technology आ गई, उस technology को use भी कौन करेगा? Advanced human resource, right? आगे देखिए. Education provides knowledge to understand changes in the society and scientific advancements, thus facilitates inventions and innovations. Similarly, the availability of educated labor force facilitates adoption of new technology. दो बातें आ गई है. नंबर वन, इन्वेंशन और इनोवेशन लाने के लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है. एजुकेटेड इंडिविजुअल्स ही न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में लेके आएंगे. नंबर टू, उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के लिए भी आपको एजुकेटेड इंडिविजुअल चाहिए, यानी आपको स्किल्ड ह्यूमन बींग्स चाहिए, जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सको, राइट? But you have to notice one thing. In a country like India, जहाँ पे measurement problems हैं, वहाँ पे we can't prove a cause and effect relationship between human capital and economic growth. हम direct relation नहीं prove कर सकते. For example, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में fresh graduates कितने आ रहे हैं हर साल, लेकिन क्या आप उन graduates को qualified human beings कह सकते हो? सिर्फ डिग्री से क्वालिफाइड होते हैं, स्किल्स नहीं होते. आप अपने आसपास के 20 पीपल को ऑब्जर्व कीजिए, अपने 20 सीनियर्स को इमेजिन कीजिए और रियलाइज कीजिए. मैं सीनियर्स छोड़िए,
काफी तो हमारे घरों में हमारे रिलेटिव्स और हमारे बड़े भाई बहन भी, आप उनकी पोजीशन देखिए, इफ दे आर ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड, आपको क्रॉस चेक करना है वेदर दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच रिजल्ट्स इन इनोवेशन एंड न्यू इन्वेंशंस। तो आपको आंसर मिलेगा नो। कुछ लोग सिर्फ ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड हो जरूर जाते हैं, लेकिन डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन लेने की वजह से उनकी कैपेबिलिटीज कुछ भी नहीं होती। हमारे इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया को छोड़ दीजिए, राजस्थान की बात करें, सम ऑफ द ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड पीपल who have completed their PG in accountancy, उनको भी अगर बोल दिया जाए कि किसी फर्म में अकाउंटेंट के फर्म में काम करना है, they are not able to maintain the accounts in a proper way। क्यों? क्योंकि डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन लिए, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई की है, राइट। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें तो ये पता चलेगा कि भाई क्या हुआ, इकोनॉमी में मोर एंड मोर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुई, लेकिन एक्चुअली वो ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके ही नहीं जा रही, क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। और हम जो इवैल्यूएशन करते हैं वो क्वालिटेटिव बेसिस पे नहीं करके क्वांटिटेटिव बेसिस पे करते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों में से नेक्स्ट ईयर 50 स्टूडेंट्स, चलिए टोटल बात करते हैं, हमारी स्कूल से 150 स्टूडेंट्स क्लास 12th करके निकल जाएंगे। 150 में से आपको सुनने में बुरा लगेगा, बट 50% बच्चे 12th को सिर्फ डिग्री पे करके निकलेंगे, उनको क्लास 12th तक का नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज नहीं होगा तो वो फर्दर इकोनॉमी की ग्रोथ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स है, पढ़ते हैं इनको बुक के थ्रू। अगर आपको पूछ ले व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू प्रूव द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 1 मार्क में, तो आपका आंसर रहेगा ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम। मेजरमेंट प्रॉब्लम की वजह से हम ये नहीं बता सकते कि हमेशा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई होगी। Why? Due to measurement problems. अब आगे देखिए क्या measurement problems है। For example, education is measured in the terms of years of schooling. Teacher-pupil ratio and enrollment rates may not reflect the quality of education. हम देखते हैं कि टीचर प्यूपिल रेशियो क्या चल रहा है, हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कितने लोग एनरोल हो रहे हैं। 10th लेवल पे फॉर्म फिल किए जाते हैं ना बोर्ड के, 12th पे भी किए जाते हैं, ग्रेजुएशन में भी किए जाते हैं, तो कितने लोगों ने अपना एनरोलमेंट करवाया, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, इन सब से हम चेक करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ। बट गिव मी अ सेकेंड, बट ये हमें नहीं बताता कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है। एक्चुअली तो वही स्टूडेंट्स, पास आउट स्टूडेंट्स ह्यूमन कैपिटल बन पाएंगे जिन्होंने क्वालिटी एजुकेशन ली है, राइट। Next, similarly, health services measured in monetary terms, life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of people in a country. हम health services भी कैसे मेजर करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना हेल्थ एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में हॉस्पिटल्स में कितना डेवलपमेंट किया, कितने डॉक्टर्स इस साल अपॉइंट हुए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या चल रही है, मोर्टिलिटी रेट क्या चल रही है। ये जो अलाइव पीपल है उनकी हेल्थ के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रू पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट मींस हम एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि मोर एजुकेशन मींस मोर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली 100%। कहा तो यही जाता है, इकोनॉमी में मेजर तो ऐसे ही किया जाता है, बट ये ट्रू मेजरमेंट नहीं है, ये आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, it means it is difficult to establish a cause and effect relationship from the growth of human capital to economic growth. However, growth in each sector has reinforced the growth of every other sector. लेकिन ऐसा जरूर है कि एक सेक्टर ग्रो करता है तो सेकेंड सेक्टर की भी ग्रोथ होती है। देखिए कैसे, हायर इनकम कॉजेस बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लोगों की हाई इनकम होगी तो वो एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे इन्वेस्ट करेंगे, दोनों पे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इफ आई एम अर्निंग मोर देन डेफिनेटली आई वुड हैव अ ड्रीम कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, उनको हेल्दी रखूं। जब मैं उनको पढ़ाऊंगी और उनको हेल्दी रखूंगी तो फ्यूचर के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। प्लस अगर हाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, अगर मैं एजुकेटेड और हेल्दी रहूंगी तो डेफिनेटली मैं मोर इनकम अर्न करूंगी। तो ये रिलेशन जरूर है, बट नंबर ऑफ टर्म्स में जो ऊपर हमने न्यूमेरिकली मेजर किया होगा वो ट्रू रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप जरूर है,
that higher economic growth, or we can say higher income, pushes the economy towards higher level of human capital formation, because people with more income wishes to develop their child and convert them from human being to human capital or human resource. And further, when more and more human capital is formed in the economy, the new human capital will be able to increase the income levels in the economy. तो ये relation ऐसे जरूर establish किया जाता है. Now development indicators in education and health sector हमारे syllabus का part नहीं है. It is no longer a part of our syllabus, but आप एक overview जरूर ले लीजिएगा कि हेल्थ के टर्म्स में और लिटरेसी रेट के टर्म्स में डेवलपमेंट जरूर हुआ है. 1950 से 2014-15 तक की बात करें तो आप लिटरेसी रेट देखिए, उस टाइम अप्रोक्स 16% थी. हमने इंडियन इको के फर्स्ट चैप्टर में इन डेमोग्राफिक कंपोजिशन ये पढ़ा है, और 2014-15 में अप्रोक्स 76% हो गई लिटरेसी रेट. ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट्स है, चेंजेस हुए हैं, पर कैपिटा इनकम चेंज हुई है. ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. रिपोर्ट बाय जर्मन, डच बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, ये भी अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. बट हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करके हम तो आगे नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई पे फोकस करेंगे. तो मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, रीडिंग आप खुद कर लेना, ठीक है. ओवरव्यू जरूर लेके रखना, क्योंकि क्लास 12th में डाला गया है अगर इसको, तो डेफिनेटली आगे कहीं ना कहीं तो यूज आएगा. अब उन्हें क्या पता होगा कि हम कोविड वाले साल में पास होके आए हैं, तो आगे कहीं किसी सिलेबस से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है, सब कुछ है. तो जिनके फ्यूचर गोल्स हैं वो इस डिडक्टेड सिलेबस को भी कवर करेंगे. सो हैव अ लुक. डच बैंक जर्मन का एक इंपॉर्टेंट बैंक था. इन्होंने ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स में ये इंफॉर्मेशन दी, इन्होंने ये रिसर्च वर्क करके आइडेंटिफाई किया कि इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो 2020 तक, बहुत पहले इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी जिसमें इन्होंने बताया था 2020 तक हम वर्ल्ड के टॉप 4 नेशंस में से एक नेशन होंगे, ग्रोइंग नेशन बन चुके होंगे. प्लस इन्होंने ये बताया कि इंडिया में एवरेज इयर्स ऑफ एजुकेशन में 2005 से 2020 तक 40% राइज आएगा. तो बिल्कुल आया है एवरेज इयर्स ऑफ एजुकेशन. पहले 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक लोग पढ़ना प्रेफर करते थे, अब 27-28 तक लोगों की पढ़ाई चलती रहती है, राइट. फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया एक इमर्जिंग स्किल्ड इकोनॉमी बनने वाली है. इंडियन इकोनॉमी नॉलेज इकोनॉमी बन जाएगी अगर इसने अपनी इकोनॉमी में अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज किया तो. हैव अ लुक. इन्होंने कहा इफ इंडियन इकोनॉमी यूजेस इट्स नॉलेज इफेक्टिवली then its per capita income will increase from $1,000 to $3,000. ठीक है. प्लस इन्होंने ये भी कहा that India is having all the available ingredients that are necessary for development of human beings, that are necessary for converting the economy into a knowledge economy. ठीक है. इन दोनों ही रिपोर्ट्स ने हमें यही बताया कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के स्कोप बहुत ज्यादा है, बट हम पोटेंशियल से कम परफॉर्म कर रहे थे टिल 2010. आज तो हम वर्ल्ड की लीडिंग आईटी इकोनॉमी है. अब यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. In the 7th 5-year plan, we realized the necessity of human capital formation. हमने इसकी सिग्निफिकेंस को और इसके रिक्वायरमेंट को रियलाइज किया था 7th 5-year plan में. बस इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थॉरोली पॉइंट्स को रीड करके रखेंगे, ऑल्दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट हम रीडिंग करके रखेंगे. ठीक है, आप इसको पढ़ लें. इससे रिलेटेड ना तो ये बोला है कि ये हटा दिया गया है, ना ही ये मेंशन किया गया है कि ये सिलेबस का पार्ट है, बट ह्यूमन कैपिटल का कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट में इंपॉर्टेंस हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें समझनी जरूरी है. नंबर 1, better human capital will be able to make better utilization of physical capital. हेडिंग से ही समझ आ रहा है. If my human being will be skilled, then he or she will be able to make a proper utilization of my physical capital. Next, higher production and productivity. Skills and knowledge of an individual reduces the wastage of resources, and when wastage reduces, it increases the productivity and production. Next, this is same. We have already discussed this point. Invention, innovation and technological improvement. ये हमने पीछे पढ़ किया था. Modernization of attitudes. Human capital formation सिर्फ technological advancement नहीं आता. Educated individual की thinking भी अलग होती है.
एक फिजिकली फिट और एजुकेटेड इंडिविजुअल है तो वो अलग तरीके से सोचता है, उसका आउटलुक अलग होता है। तो ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हमारे 5 ईयर प्लान का एक ऑब्जेक्टिव था ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, उसमें भी आपने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था दैट अलोंग विद टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन social modernization is also important. So it is one of the important advantage of human capital formation that it results in modernization of thinking of individuals. It creates a positive attitude towards the growth and development. Okay. Next, it increases the life expectancy of people. हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना है इसमें आपको। अगर हेल्दी लोग होंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया हुआ है। क्या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारा हेल्थ एंड हाइजीन हमारे एजुकेशन पे भी डिपेंड करता है क्या? व्हाट डू यू फील? आपको लगता है ऐसा? बताइए। क्या अभी कोविड-19 में आपने देखा कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दो कैटेगरी के लोग थे, तो दोनों का वैक्सीनेशन को लेके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। कुछ लोग था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, एक ग्रुप था कि नहीं भाई वैक्सीन से तो लाइफ कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मे बी आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, हो सकता है ऐसा। उनकी गलती नहीं है, गलती है उनका माइंडसेट वैसा है, वो उन चीजों को समझ नहीं पाए। किसी के साथ ऐसा हुआ? या चलो किसी ने कहीं नेबरहुड में ऐसा ऑब्जर्व किया दैट पीपल आर रेजिस्टेंट टू गेट वैक्सीनेटेड, दे आर अगेंस्ट द वैक्सीनेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। कहीं ऐसा कुछ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो बताइए। हम कुछ ऑब्जर्व ही तो नहीं करते। आई हैव ऑब्जर्व दिस मेजर डिफरेंस। जो एजुकेटेड यंगस्टर्स थे वो वेट कर रहे थे कब उनका वैक्सीनेशन होगा, वहीं जो 45 प्लस वाली पॉपुलेशन थी, 60s प्लस वाली पॉपुलेशन थी, उनको पकड़ पकड़ के उनके बच्चे लेके गए कि वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है थिंकिंग में, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। एन एजुकेटेड इंडिविजुअल इज वेल अवेयर्ड ऑफ फैमिली प्लानिंग, और वो फैमिली प्लानिंग पे फोकस करके स्मॉल फैमिली पे फोकस करता है, राइट। तो इलिटरेट फैमिलीज में साइज ऑफ फैमिली ज्यादा होती है जो अगेंस्ट ग्रोथ रेट को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। तो कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवांटेज। अब ये आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, ठीक है। एक्चुअली हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम हमारी कंट्री का फ्यूचर है, हमें फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम करनी है। सो हैव अ लुक। प्रॉब्लम नंबर 1, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। हमारी गवर्नमेंट के पास पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। नंबर 2, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। पहली बात तो रिसोर्सेज नहीं है, बट जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना उनकी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारी कंट्री में हो नहीं पा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन लेवल्स उतने इंक्रीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखिए, some educated unemployed, some educated people are unemployed और कुछ अंडर एम्प्लॉयड है। तो यानी उनमें स्किल्स हैं बट उनके स्किल्स प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहे। इसके अलावा इलिटरेसी और नॉन एजुकेशन अभी भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, और ऐसी बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हमारी इकोनॉमी में है। नंबर 3, ये आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी, ब्रेन ड्रेन। लोग पढ़ना तो यहाँ चाहते हैं लेकिन अर्निंग बाहर करना चाहते हैं। ड्रीम होता है हमें तो अब्रॉड में सेटल होना है। रीजन ये है कि यहाँ पे प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लोग माइग्रेट भी हो जाते हैं हमारी कंट्री से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री में एजुकेशन लेके हमारा जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, जो अच्छे लोग हैं, वो यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से बाहर जाके वो बाहर का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो बाहर का डेवलपमेंट करते हैं तो अगेन इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है जो पर हेड अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर देती है सर्विसेज की, जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाती। नेक्स्ट, देयर आर सेवरल इम्बैलेंसेस। किस किसने ये सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना किसी का ड्रीम रहा हो? एनीवन जिसने ऐसा सुना हो, किसी सीनियर से, किसी रिलेटिव से, या आपका कभी कोई ड्रीम रहा हो कि आपको बाहर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है? एंट्रेंस के लिए हाई कट ऑफ जाते हैं, पता है ये सब आप लोगों को? बताइए। यस मैम। यस मैम।
बट क्या आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने का सपना देखा? जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं देखते ना? हम सोचते भी नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के बारे में। तो रीजन ये है कि गवर्नमेंट के एजुकेशनल सिस्टम में एक हाई इम्बैलेंस चल रहा है। वो इम्बैलेंस ये है कि जहां फ्यू टेकर्स हैं हायर एजुकेशन, वहां तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी की काम कर रही है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जहां टेकर्स बहुत ज्यादा है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, वहां गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, वहां प्रोडक्टिविटी लेवल लो है, वहां क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पुअर है। ठीक है, तो होता क्या है, लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में 12th क्लास तक पढ़ाई करके आगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बिकॉज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड। ठीक है, बट कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स तक नहीं जाना चाहता। एक एजुकेटेड फैमिली का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है वहां क्वालिटी कैसी है। तो ये इम्बैलेंसेस चल रहे हैं। गवर्नमेंट को प्राइमरी लेवल से शुरू करना चाहिए, तब जाके वो हायर लेवल पे इंप्रूवमेंट कर पाएगी। तो ये यहाँ पे 5th पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट, हमारी इकोनॉमी में मैन पावर प्लानिंग नहीं है। उस दिन भी आपको याद होगा हम डिस्कशन कर रहे थे, 1000 वैकेंसीज के लिए 8 लाख पीपल ने अप्लाई किया। तो क्यों ना गवर्नमेंट प्रॉपरली प्लान करे कि कितनी जॉब्स के लिए कितने लोग अप्लाई कर पाएंगे, लिमिट सेट कर दे और प्लान करके रखे कि कितने लोग नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएटेड होके निकलेंगे, जिनके लिए मैं कैसे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब क्रिएट करवा सकती हूँ। तो ऐसी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है जो हमारी इकोनॉमी में नहीं है। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रियल में वीक नहीं है बट अनसेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। यहां तक रीडिंग करके रखिएगा, कल आप एक शॉकिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट्स इट, हमें ये चैप्टर यहीं तक पढ़ना है। एक लास्ट टॉपिक और हमारी ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे इस बार हमने इंडियन इको का टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।